નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ વગર. વડોદરાની પારુલ યુનિવર્સિટી દ્વારા સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલ એટલે કે VSF 6.0ની છઠ્ઠી આવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભારતના સૌથી મોટા સ્ટાર્ટઅપ કાર્નિવલ પૈકીના એક એવા આ મહોત્સવ છે. યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં યોજાનારો આ મહોત્સવ ગુજરાતની નવીનતા અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાના અગ્રણી કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. સમગ્ર વિશ્વમાં સ્ટાર્ટઅપને ઉત્તેજન આપવામાં ભારત દેશ એ ત્રીજી સૌથી મોટી ઇકોસિસ્ટમ છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં વધુને વધુ ઉદ્યોગ સાહસિકો પોતાના ઉદ્યોગ થકી દેશના અર્થતંત્રને મદદરૂપ થઈ શકે એ માટે પારુલ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખૂબ સુંદર પગલાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. જે અનુસાર આજથી સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલની છઠ્ઠી આવૃત્તિનો શુભારંભ થયો હતો. ભારતના સૌથી મોટા સ્ટાર્ટઅપ કાર્નિવલ પૈકીના એક એવા આ મહોત્સવનું યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં શરૂઆત થઈ, જે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતને નવીનતા અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાના અગ્રણી કેન્દ્ર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાની દિશામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અદા કરશે. પારુલ યુનિવર્સિટી વડોદરાના માર્ગદર્શન હેઠળ શરૂ થયેલા આ ત્રિદિવસીય સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન રોકાણકારો, વિદ્યાર્થીઓ, કોર્પોરેટ જગતના પ્રતિનિધિઓ, નીતિ નિર્માતાઓ તેમજ નવીન વિચારો ધરાવતા ઉદ્યોગ સાહસિકોને એક મંચ ઉપર જ એકત્રિત થવાનો અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આ મહોત્સવ દરમિયાન વિચાર વિમર્શ, સહયોગ અને વ્યવસાયિક તકો માટેનું પણ એક જીવંત ઇકોસિસ્ટમનું સર્જન થશે, એમ પારુલ યુનિવર્સિટીના સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલના CEO જય સોનાણીએ જણાવ્યું હતું. આ વડોદરા સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલ જે છે અમારું 6th યર છે, છઠ્ઠું એડિશન છે. 2020માં મેં પહેલું એડિશન કર્યું હતું અને આજે અમારી પહેલ છે પારુલ યુનિવર્સિટીની. એનું સૌથી મોટું એક છે કે વિઝન અમે આપી રહ્યા છીએ યંગસ્ટર્સને કે ભાઈ જોબ લેવી એ જ ખાલી આપણા માટે ઓબ્જેક્ટિવ નથી, પણ જોબ ક્રિએટ કરવી આજના યંગસ્ટર માટે એ પણ મહત્વની વસ્તુ છે. અને આ જે વિઝન છે ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદીજી આપણા તમે જોતા હશો ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સમાં યંગસ્ટર્સને એક વિઝન આપી રહ્યા છે કે ભાઈ તમે જોબ ક્રિએટર બનો, સ્ટાર્ટઅપ કરો, ઇનોવેટર બનો અને આપણી ટેકનોલોજી, આપણી પ્રોડક્ટ્સ બહાર પણ આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ. તો એ જ વિઝનને લાઇનમાં ધ્યાનમાં રાખીને પારુલ યુનિવર્સિટીનું એક સપનું છે કે જેમાં અમે લોકો એક સેન્ટર એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે કે એ સેન્ટરના અંદર અમે સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશનને સપોર્ટ કરવા માટે આખી મિકેનિઝમ સેટઅપ કરી છે. અને ઇવેન્ટ એના માટેનું જ છે. અને ઇવેન્ટ તમે જોશો તો આના અંદર લગભગ પૂરા દેશમાંથી, આખા ઇન્ડિયામાંથી 250 થી વધારે સ્ટાર્ટઅપ ભેગા થયા છે. 100 કરતાં વધારે ઇન્ડસ્ટ્રી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આવ્યા છે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ એમના ઓનર્સ આવ્યા છે. 30 થી વધુ એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ, VC ફર્મ અને ઇન્વેસ્ટર્સ આવ્યા છે અલગ અલગ જગ્યાઓથી, બેંગ્લોરથી, દિલ્હીથી, મુંબઈથી, ઇવન ગુજરાતમાં વડોદરાથી પણ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, આપણા રાજકોટથી છે, અમદાવાદથી છે, સુરતથી છે. અને સૌથી મોટી વાત કરું તો આ ઇવેન્ટ 30,000થી વધારે લોકોને ઇન્સ્પાયર કરે છે. અમારું ફૂટફોલ 30,000 સ્ટુડન્ટ્સનું અને યંગસ્ટર્સનું છે, જે લોકો સેશન અટેન્ડ કરી રહ્યા છે, એક્ઝિબિશન કરી રહ્યા છે. એવું કઈ કંપની છે જેમાં સૌથી વધુ ઇન્વેસ્ટ થયું હોય એઝ અ મોનિટરી? ના, એટલે હજુ તો આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમે લાસ્ટ ઇવેન્ટ જે કરી હતી એના અંદર અમે લોકોનું એક સ્ટાર્ટઅપના અંદર 9.5 CR નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લોક થઈ રહ્યું છે અને એનું ફાઇનલ ટર્મશીટ ચાલી રહી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે વિદ્યાર્થીઓ જોબ ટેકર કરતા જોબ ગીવર બને એ દિશામાં પારુલ યુનિવર્સિટી દ્વારા મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કરાઈ રહ્યું છે. જેના ભાગરૂપે આયોજિત આ સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના સ્ટાર્ટઅપનું નિદર્શન પણ કર્યું હતું, જેમાંથી ઘણા स्टार्टअपे रोकाणकारों ने पण आकर्ष्या હતા. सर हमारा जो स्टार्टअप है वो एग्रीटेक सेक्टर में आता है. हम लोग एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग ड्रोन को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को. ये जो स्टार्टअप था, हमने कुछ रियल प्रॉब्लम्स जो इंडिया के फील्ड्स में आ रही है और फार्मर्स जो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो हमने नोटिस की थी. वो प्रॉब्लम्स जैसे कि अभी एग्जिस्टिंग जो ड्रोन्स हैं वो लार्ज साइज़ में आते हैं. हमें वो इंडियन फील्ड्स में लार्ज साइज़ मिलता ही नहीं है कहीं पे भी कि मैं वहाँ से उसको टेक ऑफ करके लैंड भी कर सकूँ. स्मॉल साइज़ हमें मिलते हैं हर फील्ड्स में. दूसरा कि वेट कैटेगरी के अंदर कि जो एग्जिस्टिंग ड्रोन है वो बल्कि साइज़ है, उसको 3 से 4 व्हीलर की रिक्वायरमेंट आती है फील्ड पे ले जाने के लिए. वहीं उसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ता है और इसी वजह से वो हर खेतों में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर खेतों में सड़क नहीं जा रही है. मेजॉरिटी ऑफ फील्ड्स पे हमें बाइक से जाना पड़ता है. और तीसरा ये है कि उसके जो एंड्योरेंस है वो सेम बैटरी सेट और पेलोड पे 2 फ्लाइट्स लेता है. वहीं हमारा जो ड्रोन है वो 4 फ्लाइट्स लेता है, सेम बैटरी सेट और कैपेसिटी में, पेलोड कैपेसिटी में. हमने इसमें 3 इम्प्रूवमेंट किए हैं प्रोडक्ट में. पहला तो है कॉम्पैक्ट साइज़, जिसमें हमने साइज़ को रिड्यूस किया है 25%.
एग्जिस्टिंग ड्रोन से। सेकेंडली 40% हमने इसका वेट रिडक्शन किया है, तो हमारा जो एम्प्टी वेट है वो 8 से 8.5 kg इसमें लाई करता है। तीसरा हमने हाई एंड्योरेंस है, 2x एंड्योरेंस हमने इसमें जनरेट किया है। 4 फ्लाइट्स हमारा एक बैटरी सेट लेता है सेम पेलोड के ऊपर, जिससे हमने ऑपरेशनल कॉस्ट को भी डिक्रीज़ किया है, जो कि हमारी मैनुअल स्प्रेइंग जो बंदा हाथ से स्प्रे करता था उससे भी कम कॉस्ट इसको लग रहा है 1 एकड़ स्प्रे करने के लिए, जो कि 250 रुपीज़ पर एकड़। अभी हमारे 2 लोकेशंस है जहाँ पे हम परमानेंटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम परमानेंटली लोकेशंस पे पायलट्स को और हमारे सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं। तो एक हमारा हापुड़ है, दूसरा हमारा अलीगढ़ है जहाँ पे हमने रिसेंटली डिप्लॉयमेंट स्टार्ट किया है। तो टोटल मिला के उस वहाँ पर हम लोग 10 किलोमीटर्स की जो रेडियस है उस एरिया में हम वर्क करते हैं। वहाँ से कोई भी फार्मर हमें कॉल करता है, जो बेस में मार्केटिंग पर्सन है उसको कॉल आएगा, उसके हिसाब से वो स्लॉट बुक करके उस पायलट को तुरंत वहाँ पे डिप्लॉय करेगा। क्योंकि हमने एक और चीज़ नोटिस की है कि फार्मर को फसलों के लिए ऑन टाइम अगर स्प्रे मिल रहा है तो वो फसल के लिए भी अच्छा है और फार्मर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फसल जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगी अगर उसमें कुछ खराबी आ गई है तो। गुजरात में सोचा है आपने? गुजरात में काम करने का? हमने अभी गुजरात में भी ऐसा सच सोचा नहीं है। लाइक अभी जो हमारा नेक्स्ट एक्सपांशन है वो हरियाणा में है, बट इन फ्यूचर हम लोग सोच रहे हैं गुजरात में भी आने के लिए। बट यहाँ का हम पहले रिसर्च वगैरह कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम डिप्लॉयमेंट डालेंगे। जैसे अभी हमने 5 लोकेशन जो डिप्लॉयमेंट के लिए सोच रखी है, उसमें हमने रिसर्च करी है जाके कि यहाँ पे किस टाइप के फार्मर्स है, किस टाइप्स के फील्ड्स होते हैं, कहाँ पे बेस बनाना है, क्या सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि कॉस्टिंग एक बहुत मैटर करता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोकेशंस पे मैनुअल स्प्रेइंग की कॉस्ट बहुत कम है, मोस्ट ऑफ द लोकेशंस पे मैनुअल स्प्रेइंग की कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमें मैनुअल स्प्रेइंग से भी कम कॉस्ट रखनी है। तो मान लीजिए किसी फील्ड में, जब गुजरात है तो कोई यहाँ के विलेज में मान लीजिए कम कॉस्ट लग रही है, 200 रुपीज़ अगर वो मैनुअल से कर रहा है और मैं 250 रुपीज़ ले रहा हूँ, तो वहाँ तो मैं खुद ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई फार्मर क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करे इस चीज़ के ऊपर, राइट। दूसरा कि मैं उसमें सोचूंगा कि मैं अपने ऑपरेशनल कॉस्ट कहाँ से कम कर सकता हूँ। या तो मैं रेडियस कम करूँ और ड्रोन्स ज़्यादा सप्लाई करूँ वहाँ पे, या मैं प्रोडक्ट में कुछ नया इंप्रूवमेंट करूँ, मैं अपनी टीम से बात करूँ, मैं अपने प्रोडक्ट में नए इनोवेशंस वगैरह करूँ ताकि मैं ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करूँ। सितंबर मंथ में हमने 25% और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया है, न्यू इम्प्रूवमेंट्स करके इस चीज़ में। ऑपरेशन कॉस्ट कम हो रहा है, तो आप इस ड्रोन पे इम्प्रूवमेंट अभी लाने के लिए बाकी है या सब आ गए? सर अभी और भी इम्प्रूवमेंट्स आने बाकी हैं इस चीज़ में। किस प्रकार? जैसे कि अभी हम लोग जो स्प्रे कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग ड्रोन स्प्रे करती है वो 10 लीटर्स करती है से इस नोज़ल के थ्रू। जी, ये जो है फ्लैट टिप नोज़ल से, इसकी जो माइक्रोन्स होती है 50 माइक्रोन्स होती है, लगभग 50 to 60 माइक्रोन्स। तो अब इसमें क्या होता है कि वो जो बूंद पत्तों पे गिर रही है वो वेट की वजह से टपक के आपके ज़मीन में चली जाती है, और वहीं पे आप 1 एकड़ में 10 लीटर स्प्रे कर रहे हो। आप इतने अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हो, 6 मीटर के हाइट पे वो लोग फ्लाई करते हैं और 6 मीटर की पर सेकंड की स्पीड पे वो लोग उड़ा रहे हैं। उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो दवाई है वो उड़ जाती है, चल नहीं पाती। वहीं पे हमने हमारे में पैरामीटर्स इस तरीके से सेट किया है कि वो 1 से 1.5 मीटर की अल्टीट्यूड पे स्टेबली फ्लाई कर सके। देन उसकी जो स्पीड है वो 2 से 2.5 मीटर की रहती है, ताकि हर पौधे पे अच्छी तरीके से लगे। हमारे जो नोज़ल्स है, हम सेंट्रीफ्यूगल नोज़ल यूज़ करते हैं, जिसके माइक्रोन्स जो ड्रॉपलेट की जो साइज़ होती है वो 150 माइक्रोन्स होती है एवरेज, जो कि आप एक मिस्ट फॉर्म में समझ सकते हो, एक फॉग के जैसे होती है कि एक पत्तों पे ओस लग गई है एक तरीके से। अभी तक हमने 1000+ एकर्स में स्प्रे कर चुके हैं। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हमारा ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ही डिज़ाइन में मॉडिफिकेशंस है। लाइक हॉरिजॉन्टल टैंक है तो उसको हम वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट साइज़ कर रहे हैं कि बाइक पे और रिडक्शन हो जाए, और फ्लाइट टाइम में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में। કેમેરામેન નવનીત પરમાર સાથે ચિરાગ પટેલ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ વડોદરા। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।